डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। मल्टीपल डबल बॉन्ड्स कर दिया। दैट्स नाइस। तो हम इतना पीछे क्यों है? क्योंकि हम बाद में शुरू हुए हैं। हाँ, वी आर 2 वीक्स लेट। Recording in progress. So we just started triple bonds, right? Okay, done. Let's move on. How do we name this? That's going to be lecture number 3. So priority is double bonds or triple bonds, then it is an alkyl group. So if I see here 1, 2, 3, 4, 5, and if I see here, that is going to be 1, 2, 3, 4, 5. So which side do I count on? So this is incorrect. Okay, this is incorrect. Why? Because this side prefers alkyl group more. And the other one is correct. Red bar is correct. Why? Because here we are prioritizing triple bond. So if we see this priority list, more important is a triple bond or a double bond over an alkyl. Okay. So how do I name it? So it is going to be 4-methyl and total are 5 carbons. So 2, 10 times. Or we can also use 4-methyl pent 2 9. Yeah. आते हैं वहां तक भी जाओ। कैन आई चेंज इट? कोई ऐसा है जिसका आज फर्स्ट डे है? बस आप अकेले। आज फर्स्ट डे। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट डे सिर्फ एक का ही है। Good. तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको। ले लिए, फिर तो नहीं होना चाहिए। दैट्स नाइस। अच्छी, आप अच्छे बच्चे हैं इसका मतलब पढ़ाकू टाइप में। कैन आई चेंज माई स्लाइड? देन व्हाट डू वी हैव? तो इफ वी हैव structure like this. Okay. We have a structure like this.
How do you name this? Four methyl, it will become a pentyl, So that's 4-methyl, one pentyl. and then it has to be 1 pentyl. That's nice. How do you name this? That's the main chain, right? Complete main chain, right? So it's simply, Thymol, thymol, and ओ भाई क्या हो गया, कहाँ चलेगा? 2 हेक्साइन सीधा सीधा है। क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 डन। परेशानी हो रही है इसका मतलब है, तो और परेशान करते हैं। three inside, four inside, three inside, four inside, two inside. 3 ये कह रहे हैं, 4 ये कह रहे हैं, लेट्स राइट 3.5 एवरेज ले लेते हैं। Four inside. सो मेन चेन, राइट, इट कैन बी लाइक दिस, सीधा भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, इट्स द सेम थिंग। विच साइड डू वी काउंट फ्रॉम देन? So left hand side, 1 2 3 4 5 6, that's a branch, right? So it becomes 4 ethyl. Okay, 4 ethyl, and then what? 2 hexynes, or it can be 4 ethyl hex 2 9. Done. Let's add multiple triple bonds. सेल्फी टाइम पे आ गया वो, लिखना चाहिए था आपको स्पीड में, जल्दी से लिखो। So multiple triple bond. So it is exactly similar to double bonds. ठीक है, अगर if we have two triple bonds, then the name should be alka diimine. If we have three triple bonds, then it should be, क्या होना चाहिए बताएं? एल्का ट्राइमाइन। ठीक है, 4 triple bonds, so alka tetraene. So let's do an example. So if we have something like this, so this is going to be, कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, so that is buta for 4 carbons, first carbon and third carbon. So 1 3, two double triple bonds are to di, and triple bond also I. Or it can also be 1 3 buta diene. Okay. यहाँ पे which side do we count from? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So triple bond is on first carbon, on fourth carbon, and on seventh carbon. If we see from this side, that is 1 2 3 4 5 6 7 8. So just to show you this, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, you can count from either of the sides, whatever you want to. So it is going to be 1 4 7. ठीक है, octa 3 है तो ट्राई
क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो fine. और ऑक्टा 147 triene. Okay, is this understood? Yes. Okay, that's nice. अब आते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर कि सर व्हाट इफ वी हैव बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, कैन आई चेंज इट? सो इफ हाइड्रोकार्बन चेन contains both double and triple bonds, then what happens? So rule one, whichever is closer towards the end is preferred in numbering. So let's understand it through an example. ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, लिखो नहीं अभी, सिर्फ समझ लो उसे, ठीक है? अब इसका नाम कैसे रखेंगे? नाम तो बाद में रखेंगे, पहले सिर्फ प्रेफरिंग नंबरिंग देख लेते हैं, ठीक है? इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग होगी, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से इफ वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, अभी ध्यान से देखो, लिखने की अभी जरूरत नहीं, अभी सिर्फ समझो सर, ठीक है? सो नाउ विच साइड डू आई काउंट फ्रॉम? दिस साइड, 1 2 3 4, डू यू guys get this? Now, why is that so? Because we can see clearly कि triple bond more closer है end के, और double bond more closer end. So we are not preferring double or triple. We are preferring which one is more towards the terminal half. Is this understood? आपका question सर आप जो अपने ड्यूटा 1 3 टाइम स्ट्रक्चर भी बनाए बनाया, आप एक ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से रिप्लेस करें तब क्या होगा? यानी कि आप मुझे इक्विवेलेंट पोजीशंस की बात करें, मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर. यू हैव अ क्वेश्चन? उस साइड से काउंट इसलिए नहीं करें क्योंकि वहां से डबल और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन से दूर है, कोएफिशिएंट बड़ा हो जाए. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, दिस इज नंबरिंग. नाउ हाउ डू वी ट्रीट इट इन आईयूपीएससी में? सो फर्स्ट थिंग इज, पहले सुनना फिर लिखना आराम से, अभी समझ लो पहले. सो फर्स्ट थिंग इज, these hydrocarbons are treated as basically alkyne derivatives. They are alkyne derivatives. तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ आई एम हैविंग अ सिचुएशन जहां पे डबल बॉन्ड भी है मेरे हाइड्रोकार्बन में और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आई एम राइटिंग कि ये एल्काइन डेरिवेटिव है. एल्काइन डेरिवेटिव का क्या मतलब है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि माय मेन फंक्शनल ग्रुप, माय मोर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इज ट्रिपल बॉन्ड. सी, मैंने क्या लिखा है? एल्काइन डेरिवेटिव. सो एल डबल बॉन्ड इज नाउ सेकेंडरी, डबल बॉन्ड इज नॉट प्राइमरी. डबल बॉन्ड एक ब्रांच बन गया. नाउ व्हाट डज दैट हैज टू मीन? सोचो, सिर्फ मैं लिख नहीं रहा, सोचो. इफ वी हैव अ डबल बॉन्ड एंड इफ वी हैव एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ऑन माय मेन चेन, इफ यू हैव अ डबल बॉन्ड एंड इफ यू हैव एन अल्काइल ग्रुप, जैसे हमने पहले किया था. सो व्हिच इज योर मेन फंक्शन? दैट इज दैट एन अल्काइल और इज दैट अ डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड. Do you get it? If we have all single bonds and if we have an alkyl group, what's the main group here, main functional group? Alkyl group. So you are preferring alkyl somewhere and you're not preferring alkyl somewhere. Why? Because it depends on alkyl की presence में और कौन है दूसरा. Do you get it? So if we have a triple bond and a double bond, more important to us is triple bond. Less important is double bond. Do you get it? So original hydrocarbon is now an alkyne derivative. Now that should be reflected in the name. How do we do that? We are going to write name in terms of alkene and anion. Now this shows कि मैंने इसमें से E eliminate कर दिया, right? That has to be noted down कि मैंने E हटा दिया यहाँ से. क्यों हटा दिया E? क्योंकि अब एल्कीन नहीं है. एल्कीन मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है. मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड. सो ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ? पूरा टर्म यूज कर रहा हूँ YNE इन ऑर्डर टू इंडिकेट कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. डू यू गेट इट? नाउ लेट्स अप्लाई इट. नाम कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल हो जाएगा अगर वो वाली बात समझ में आई है तो. दिस इज फर्स्ट, राइट? ट्रिपल बॉन्ड एंड देन आई एम हैविंग थर्ड पर डबल बॉन्ड. सो आई एम गोइंग टू राइट 3 for double bond, 5 carbons. So what should I write?
पेंट, राइट, एंड देन डबल बॉन्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, डबल बॉन्ड इज ब्रांच, तो इसके साथ हम ई एन लिखेंगे, ई एन ई नहीं लिखेंगे, so it becomes three pentenes, and then what? First carbon pair triple bond. So one ion. Is this understood? Or what else? इसके साथ एक और नाम भी हो सकता है. We could have written, pent 3 En 4 ion. These both are equally accepted. Do you get it? अब आप जरा रेड वाले का नाम रखो. क्या कह रहे हैं? फोर कहाँ से आया? सॉरी, थ्री में वन वन होना चाहिए. तो सॉरी, फोर नहीं होना चाहिए, वन होना चाहिए. सही. रेड वाले का नाम रखो खुद से. So double bond, first carbon pair, total five. So what should I write? One, ten, ten, और थर्ड पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड. So three ion. Beta, is this understood to everyone? Good. Now you may write. ENE is used for double bonds, but here we are using EN to show that that's not the main chain. That's the less important, less reactive. Can I change it? आ ही नहीं सकता. इसका मतलब है आपने रूल नंबर 5 पढ़ा ही नहीं है. Double bond and triple bond are always parent chain, main chain, no matter how short they are. जैसे आप केमिकल रिएक्टिविटी की बात करो ना, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और जिसमें एक एल्काइल चेन भी है. अब मुझे ये बताओ कि उसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा? आंसर इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा. पहले डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा. दैट मीन्स डबल बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट. तो आप उसको साइड चेन में कैसे रख सकते हो? मैं अपनी मेन चेन से उसी को काउंट करूंगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे वो छोटी है, छोटी है. अब आते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे. ये नाम आप रखने वाले हो.
डन, सबने कर लिया। ओके, लेट्स सी। So first thing is we count from this side. Double bond is on third carbon, so I'm going to write 3. For 7 carbons, I'm going to write hept. Locating double bond is heptene. Then first pair triple bond है 1, or I'm going to write hept. Sorry, hept 3n and 1i. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो डबल बॉन्ड प्रेफरेंस पे है यहाँ पे 4 5 6 7 and 8. So what do I write? So 1 octet 4 ion. यहाँ पे भी this side has to be preferred 3 4 5 6. So 5 पे we are having a branch, so 5 methyl. ठीक है। और थर्ड पे डबल बॉन्ड है तो थर्ड 3 हेक्सेन और 1 आई। बेटा ये समझ में आता है सबको? पक्की बात है? 100% पक्की बात है? एनी क्वेश्चंस? नहीं? गुड, नो क्वेश्चंस। जबरदस्त। आपको क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, इसमें ऐसे टेंशन वाली जवाब। सो देर इज दिस IUPAC असाइनमेंट। ठीक है, अभी आप करेंगे और हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज स्ट्रीम 2, राइट? PCSH। तो मैंने भेजा आपके ग्रुप पे, और जो भी सही करेगा बिल्कुल सारे नाम सही रखेगा, कंप्लीट देगा। तो नो डिस्कशन इज अलाउड। कितने इसमें क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 मिनट्स ले ले।
Done. Halfway. 7.
यस। नंबर। बेटा अगर क्लास खत्म होने से पहले ये खत्म नहीं हुआ ना, उसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है ये होमवर्क में जा रहा हूँ। और होमवर्क जो है वो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब मैं कल पूछूंगा ना कि होमवर्क हुआ या नहीं हुआ, उसका जवाब आएगा सर होमवर्क होता गया है। जल्दी से कर ले।
आपने फर्स्ट का क्या नाम रखा? 5-methyl 2-hexene, इज दैट करेक्ट? गुड। सेकंड का क्या नाम रखा? 6-डाइमिथाइल। मैं लिखा हुआ। So that is going to be 6,6-dimethyl 4-heptane 2-ine, number 2, right? नंबर 3 पे आते हैं। तो 2,2,9,9 tetramethyl 3-decan 5। That's the name. Here, can you see it? I'll share this file once everyone has completed this. I hope सबने तो अभी तक नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, right? एनीवेज पहले 3-4 चेक कर लें। सबने 5-6 कर लिए? सबने, पक्की बात है, 5-6 तो कर लिए ना कुछ। थर्ड तक आ गए। नंबर 4 पे आता है। 4 राइट। नंबर 4 इज 4-ethyl 2,5-octadiene। नंबर 5 ये रहा 2,6,10 डोडेका ट्राइन 4,8-diene। 2,6 डोडेका ट्राइन 4,8-diene। ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करते हैं। होमवर्क ले लो। सॉरी। हाँ जी। बाकी फिर ये मैं आपको फाइल भी भेज दूंगा, हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन आपको पहले ये खुद करना होगा, अदर देन दैट कोई फायदा नहीं। अच्छा, केमिस्ट्री का जब भी टेस्ट होगा, सो आई थिंक आपका नेक्स्ट वीक में वीकली टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स दे रिमेन साइक्लिक। जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, रिगार्डलेस क्लास हुई है नहीं हुई है, सिलेबस अनाउंस हुआ है नहीं हुआ है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ द टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को वो अनाउंस करते हैं हम टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट में क्या आएगा? नेमिंग आएगी। नेक्स्ट मंडे को वो अनाउंस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर उसमें आप एल्केन्स भी आएगा। और आगे जाते रहें तो ऐड करते रहेंगे, सब कुछ भी नहीं। तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने टेस्ट में टॉपिक्स आते जाएंगे। ठीक है। चाहे कोई आपको इन्फॉर्म करे ना करे, मैंने आपको बताया। इज दिस अंडरस्टूड? अगर नहीं होता, इस टेस्ट नहीं होगा, जब भी होगा उतने टॉपिक्स आएंगे जितने पढ़े। ठीक है, छुट्टी। नहीं, 11 वाला है, ये वाला। क्या नहीं बताया मैंने? मैंने आपको बताया डबल और ट्रिपल बॉन्ड में अगर एग्जैक्ट पोजीशन होगी तो डबल बॉन्ड प्रेफर होगी। हमने किया ना? अच्छा, आप लोगों की क्लास है कोई और?